people, welcome to your own channel by Pankhuri Miglani. I'm Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. Well, people, as usual, I bring to you one more topic, that can change your life. After knowing these 7 mistakes that I have seen, in years and years, several students doing these mistakes and not getting selected even after doing all other right things, that is associating with the right teacher, reading the right books, giving the exam, actually spending 2 years, तो भी selection नहीं होती है because of these 7 most common mistakes that every NEET aspirant does. Okay? तो आज अगर ये 7 mistakes जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, I'm just a reminder call for you, I'm an alarm clock for you. आपका जहन, आपका दिल जानता है what are the things that you need to avoid and what you need to do. I just come here to actually remind you and as a wake-up call. ओके, इफ यू आर अ 12th अपियरिंग स्टूडेंट, आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपने सारे 12th क्लास के फ्रेंड्स के साथ जिनका बोर्ड का एग्जाम है शेयर कर दें. ड्रॉपर्स के लिए मैं अलग एक मिस्टेक बताऊंगी, ड्रॉपर्स के साथ शेयर कर दें. और जो बच्चे क्लास 11th में हैं, अगर आप ये 7 पॉइंट्स को बांध लेते हैं कि हम ये 7 मिस्टेक्स नहीं करेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, देन आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप इनमें से कोई भी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं अपनी नीट प्रिपरेशन में. और जो लास्ट मिस्टेक है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से फर्स्ट मिस्टेक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम ऑर्डर में जानेंगे, तैयारी के ऑर्डर में जानेंगे कि किस पड़ाव पे आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट आई हैव फॉर यू इज अनप्लान्ड प्रिपरेशन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ people are doing an unplanned preparation. If I ask them, by November my syllabus will be complete. If not by November, by December physics will be complete. By January I'll do this, then February I have my board exams, or ma'am, I will start my revision in March. This is not the way you do NEET preparation. Understand that this exam is not a game. It is not an easy game. It is a game, but the rules are very, very tough to handle. Not everybody can do it. After all, you're going to become a doctor. So when I say plan for these 6 months, especially people who are going to appear in 2025, you have only 6 months and you have huge amount of syllabus. You have a lot of things to do. You have your worries and anxieties around your chapters and around the time and around your board exams. Now is the टाइम टू मेक अ प्लान इन योर लाइफ. ये प्लान छोटे से छोटा ये भी होना चाहिए. व्हाट टाइम यूर गेटिंग अप, व्हाट टाइम यूर स्लीपिंग, व्हाट टाइम यूर ईटिंग योर फूड, व्हाट पार्ट ऑफ द डे should your physics be, is it early morning or is it midday, when are you doing biology, when are you doing your questions, when are you solving your doubts. It has to be a monthly plan. By October end this should happen. By December all my syllabus is complete. My weekly mock test will include this chapter. So please understand that nobody can be successful in an exam like NEET or even IIT JEE till you focus on your daily timetable. Even if you are a topper, daily timetable is the ritual of every successful person appearing for any test, any exam in life. Second thing is people reading books other than NCERT. Now this is a common song which is sung everywhere, and I know you must be tired of even hearing this, and you would tell me, ma'am, I'm reading NCERT only. Okay, but here is the catch. I'm going to tell you something more. Merely reading NCERT the way it is, जैसे परोसी जाती है वैसे के वैसे उसको कंज्यूम करना इनफ नहीं है. You need NCERT decoded. You need to understand the hidden meanings of NCERT. Only and only then you will be able to solve MCQs. ये बिल्कुल सही बात है that MCQs are asked from NCERT. But the problem is accuracy of those MCQs. क्या मैं उन MCQs को सही मार्क कर पाऊंगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, दैट इज डिटर्मिन्ड बाय योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनसीईआरटी, फॉर विच यू रिक्वायर अ टीचर. Okay, for which you require a teacher who's a walking and talking NCERT or who just decodes NCERT very, very well. जिन लोगों के लिए 6 महीने रह गए हैं, this is for class 11th people. I told you this video is for everybody. So please share it with your juniors. Please share it with people who are starting the journey. Okay? तो आप अपने आप को उस टीचर से एसोसिएट करें जिनसे समझने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद, यू आर एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ एनसीईआरटी.
दूसरी बुक, दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज इस टीचर के साथ साथ होता है आपके अपने नोट्स, यानी कि आप खुद हैंड रिटन नोट्स. आई ऑलवेज से दिस, विच विल इंक्लूड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर एज वेल एज द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी मिनिमम 5 to 7 टाइम्स, जितनी बार पढ़ोगे, 7 का अगर 10 भी कर लोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया जानने को मिल रहा है. बट 5 to 7 टाइम्स एनसीईआरटी इन अ decoded manner is the only thing that you need to do for the current pattern of the NEET exam. Third mistake, reading around only your strengths. This is very common because human beings, as their psychology is, जो हमारी nature है, that is always to move towards familiarity. We want known things. Yeah, we are often scared of what is uncertain or unknown. Okay, because that makes us lose control over things. तो जब नीट एग्जाम की बारी आती है तो आप ऐसा खेल नहीं खेल सकते हो. रूल्स आर डिफरेंट. अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पसंद है, आप उसी को अगर बार बार पढ़ते हैं, आप समझिए कि स्पेशली व्हेन द सिलेबस हैज रिड्यूस्ड, द इंडिविजुअल वेटेज ऑफ द चैप्टर्स हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स. ठीक है, तो हर एक चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं. और जैसा कि मैं अपने हर सेशन में, कैमरा ऑन हुआ नहीं और मेरे मुंह से ये निकला नहीं कि भैया चैप्टर की वेटेज वाइज लिस्ट बना लो. जो हाईली वेटेड चैप्टर है, आपको पसंद हो या ना हो, वो आपको भरपूर तरीके से अपने एग्जाम के लिए करने हैं. और चाहे वो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का भी हो, प्लांट किंगडम भी हो, एनिमल किंगडम भी हो, उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए. एटलीस्ट टिल दिसंबर आपके पास चांस है कि आप कोई चैप्टर जीरो से भी कर सकते हैं. मैंने इसी चैनल पे बैकलॉग की एक वीडियो की है. I will be pasting the link of that video. Do watch that. It will give you a clear picture to go across your weakness. ठीक है? So be courageous enough to even do weak chapters or scary chapters. चौथी mistake, solving questions later. Whenever I ask students, this is the second common mistake that I see people doing. It is, I will do them later. पहले मैं theory तो पढ़ लूँ, उसके बाद मैं January, February से I will buy a big heavy question solving book and I will solve all the questions and everything will be nice. Question solving happens every day. It is every day. And trust me, again, theory जब हम पढ़ते हैं, there is a blur area that is created. There's a lot of gray area. आप किसी की कोई बात सुनते भी हैं, आप कोई मूवी भी देखते हैं, it is not black and white. The knowledge that you gain from a particular story और थियरी और कंटेंट इज नेवर, आपको पता नहीं लगता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मेरा स्ट्रॉन्ग है. अब इस लाइन का एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे हुआ, हो सकता है थियरी में आप ये सोचें मुझे 80% समझ में आ गई, 70% समझ में आ गई, आई एम गुड टू गो. But when you sit in the exam, only that 20% or 3-4 lines of NCERT which you sort of understood. Yeah, how many of you face that? Let me know in the comment section. वहीं से ही आपके 5 MCQs बन गए. ऐसा हो सकता है पोजिशन ऑफ ओवरी, एस्टिवेशन, फैमिलीज, एग्जाम्पल्स एंड व्हाट नॉट. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट सॉल्विंग द क्वेश्चंस इज द रियल डील. उसके अलावा कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है. देन lack less revision. This, ladies and gentlemen, is actual the real deal. Revisiting the concepts. जो भी बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं, जिनको भी मैंने सेलेक्ट होते हुए देखा है ना, उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा है, मैम मैंने तो ये चैप्टर 10 बार कर लिया था. उनको पेज नंबर तक याद होता है. राइट? आप जब किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ते हो, उनको एग्जैक्टली पता होता है एनसीईआरटी में ये कहाँ क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ये डायग्राम का लेबल दिया हुआ. क्यों ऐसा क्या किया उस टीचर ने? उस टीचर ने पढ़ा के उस टॉपिक को इतना रिवाइज कर लिया. ये जो रीवर्ड है, रिवाइज, रिविजिटिंग, इसी से ही आपकी जो लर्निंग कर्व है वो ऊंची, वो फ्लैट नहीं होगी. इट विल सी मेनी पीक्स. तो कोई भी आप टॉपिक करते हैं, रिविजन हैपेंस एवरी डे. हो सकता है, यू नो, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. जो चैप्टर आपने मई में किया है वो आप अक्टूबर में रिवाइज कर रहे हो. बैकलॉग भी रोज पूरा किया जाता है, रिवीजन भी रोज की जाती है, और उसका मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया था चैनल पे. बैकलॉग वाली वीडियो देखो. ये वीडियो मैं अपने फायदे के लिए नहीं लेकर आती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय पे नवंबर में आप वहां बैठकर क्या गलती कर रहे हो, दिसंबर में आप क्या गलती कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो और क्या ना अच्छा कर रहे हो. तो इन बातों को थोड़ा समझें और इनसे फायदा लें, ऐसी गलतियां ना करें. Sixth mistake is there is no
preparation during the board exams, and there is no evolution in your preparation, there is no change, progressive evolution if you are a dropper in class 11 student. तो ये एक बहुत ही डेप्थ वाली बात है, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल सकती है. 12th वाले बच्चों की मैं बात करती हूँ. अराउंड जनवरी एंड से लेकर मार्च तक का एक पीरियड होता है जिसमें अक्सर बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाले फ़ोन आते हैं, मैम आई वॉज गोइंग फाइन टिल डिसम्बर, फुल थ्रॉटल प्रिपरेशन, बट जैसे ही जनवरी आता है पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, स्कूल वाले लोग, you know, the pressure is built up for board exams, practical notebooks complete करनी होती है, स्कूल में एग्जाम्स प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, एंड यू नो आई लॉस्ट द मोमेंटम ऑफ माई प्रिपरेशन. मेरा जो टाइम टेबल मैं पूरे साल से फॉलो कर रहा था, कर रही थी, एंड नाउ यू नो आई हैव गिवन अप. तो उस फेज को एंग्जाइटी से ना सॉल्व करें, उसके लिए भी आप टाइम टेबल बनाएं. हाँ, ये बिल्कुल अलाउड है कि जब आप इंटरनल्स दे रहे हैं, प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपका टाइम टेबल थोड़ा चेंज होगा. तो उसको आप इत्मीनान से, अगर आपके दिसंबर तक पूरा सिलेबस 2-3 बार हो चुका है ना, आपके लिए बोर्ड्स विल बी वेरी ब्रीजी, इट विल बी लाइक अ गेम, इट विल बी लाइक अ हॉलीडे. आप एक बात बांध लें, एक बात प्लीज ये जान लें कि बोर्ड्स और नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होती है. जो सिलेबस बोर्ड्स का है वही का वही नीट में है. तो हो सकता है कि जो आप रोज क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे थे या जो संडे के मॉक टेस्ट दे रहे थे, वो आप इस एक महीने में फरवरी में ना दे पाए. दैट इज ओके, लेकिन अपनी थियरी को वैसे ही पढ़ोगे, एनसीईआरटी को वैसे ही पढ़ोगे, नोट्स को वैसे ही पढ़ोगे जैसे आप पढ़ते आए हो. जो जितने भी ड्रॉपर्स हैं या क्लास 11th के बच्चे हैं, उनको ये ज़रूर चेक करना चाहिए इन जनवरी, इन दिसंबर, कि क्या मेरा स्कोर बढ़ रहा है, हैव आई इवॉल्व, क्या मेरी रिविजन करते हुए मुझे टाइम कम लग रहा है. व्हाट इज द टाइम दैट आई टेक फॉर रिविजन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट नाउ एंड व्हेन इट वाज डन इन सितंबर और मई और व्हेनेवर इट वाज डन. रिविजन टाइम किसी भी इवॉल्विंग कैंडिडेट का, एस्पिरेंट का बहुत कम हो जाना चाहिए. 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट. या क्या मेरा मॉक टेस्ट स्कोर, जैसा कि मैंने बोला, क्या एक टाइम पे मैं 3-4 घंटे बैठ सकता हूँ पढ़ने के लिए ऑन माई स्टडी टेबल विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. क्या मेरे टाइम टेबल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको 3 घंटा बैठना है मिनिमम. ओके, तो इफ नॉट मोर. तो इसको मैं इवोल्यूशन बोलती हूँ. लास्ट मिस्टेक, नॉट इनफ मॉक टेस्ट. जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझसे पढ़ चुके, उनको ये तो पता होगा कि मैम का सेशन हुआ नहीं है ना, मोटिवेशन स्ट्रैटेजी वाला, और मॉक टेस्ट वर्ड आया नहीं, क्योंकि यही रियलिटी है. अगर कोई शीशा है इस दुनिया में किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो टेस्ट है यार, है ना. अगर मैं एक सोल्जर को आर्मी में तैयार किए जा रही हूँ, उसको बता रही हूँ, हाँ यार यू शूट द गन लाइक दिस, दीज आर द रूल्स ऑफ द वॉर, ऐसे लड़ाई करनी है, ये ड्रिलिंग है, और उसको वॉर पे भेज ही नहीं रही हूँ, है ना, उसको असली लड़ाई के लिए भेज ही नहीं रही हूँ, तो वो सोल्जर किस काम का. तो वो लड़ाई जो आपने एग्जाम वाले दिन एक्चुअलिटी में लड़नी है, उसको फेस तो करो. इट इज द ड्रिल. तो मॉक टेस्ट आपके, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है. मुझे समझ में नहीं आया कभी भी कि ये कंफ्यूजन होती क्यों है आप लोगों को. ध्यान देखिए कि हो सकता है बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर आइडियली आप 3-4 चैप्टर्स के मॉक टेस्ट दे रहे हो संडे को. उसके बाद क्वार्टरली सिलेबस, क्वार्टर सिलेबस, 1/4 सिलेबस हो जाना चाहिए. हाफ सिलेबस मॉक टेस्ट इन जनवरी फरवरी, एंड द मोमेंट इट रिंग्स मार्च. अगर तुम मुझसे ईमानदारी से पूछो, कोई तुक ही नहीं बनता कि आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ना दो. मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपको कोई बताए या ना बताए कि ये इसका जो स्कोर है ना, वो तुम्हारी रियलिटी है. हो सकता है तुम यहाँ पे टॉपर हो, यहाँ पे तुम टॉपर हो, यहाँ तुम्हारी 10th रैंक आ रही है, और यहाँ पे तुम 2000 रैंक में आ रहे हो. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑफलाइन कम से कम 10 से 15 आपको देने ही पड़ेंगे. अगर आप नहीं देते हो, ऐसा मैं कई लोगों को बोल चुकी हूँ, सुनने में कड़वा लगेगा, अगर आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिनिमम ऑफ 15 दिए बिना एग्जाम में जाते हो, तो भैया फिर पूजा पाठ करके जाओ. इट इज एब्सोल्युटली अ चांस फैक्टर कि आपकी सिलेक्शन हो जाए. इसका स्कोर, इसके आसपास आपका नीट का स्कोर रहता है जो आपका फुल सिलेबस में आता है. सो दीज वर द मिस्टेक्स, 7 मिस्टेक्स आई वांटेड टू टेल यू. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो. ईमानदारी से बताओ. यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू. आई विल पर्सनली गाइड यू. You can join my Telegram channel, you can message me on Telegram. I will personally guide you कि ये mistake को ऐसे सुधारना है.
राइट और कौन सी मिस्टेक आप नहीं कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज लाइक द वीडियो, इट मोटिवेट्स मी to stand by your side during your NEET preparation and to keep being the alarm clock. Thank you very much and see you very, very soon.